خالد بن ولید، ایک ایسا نام جسے تاریخ آج بھی دنیا کا عظیم ترین جنرل کہہ کر یاد کرتی ہے۔ نپولین، سکندر اعظم اور جولیس سیزر جیسے بڑے فوجی کمانڈر اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی شکست ضرور کھا چکے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد سپہ سالار تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری۔ یہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ دنیا کے بڑے عسکری ماہرین کا بھی اتفاق ہے۔ آج بھی آکسفورڈ اور ہارورڈ جیسی بڑی یونیورسٹیوں میں ان کی جنگی حکمت عملی اور منصوبہ بندی کو مثالی سبق کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگوں میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ ایسی کون سی حکمت اور کون سا راز تھا جس نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار بنا دیا؟ اور کیوں آج 1400 سال گزرنے کے باوجود دنیا کے ہر میدان جنگ میں ان کا نام گونجتا ہے؟ خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اسلام کے عظیم سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی اس وقت کی سب سے طاقتور سلطنت عظیم فارس پر حملہ کر دیا۔ صرف 18,000 مسلمانوں کے مقابلے میں 40,000 فارس کی فوج کھڑی تھی، لیکن اللہ کی تلوار خالد بن ولید نے لمحوں میں انہیں شکست فاش دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسلام عرب کی سرزمین سے نکل کر عالمی طاقت بننے کی راہ پر چل پڑا، کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں نے پہلی بار عرب کے باہر فارس کا ایک اہم صوبہ کویت فتح کر لیا۔ جب ایران کے بادشاہ کو خبر ملی کہ اس کی بڑی فوج مسلمانوں کے ہاتھوں یوں آسانی سے ہار گئی، تو اس نے بدلے کے لیے فوراً ایک نئی 40,000 سپاہیوں پر مشتمل فوج خالد بن ولید کے خلاف روانہ کر دی۔ مگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کویت پر قبضہ کرتے ہی اپنی جاسوسی نیٹ ورک پورے علاقے میں پھیلا دیا تھا تاکہ دشمن کی ہر حرکت ان تک وقت سے پہلے پہنچ جائے۔ چند دنوں میں خبر ملی کہ ایک بڑی فارس کی فوج تیزی سے مسلمانوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاخیر کیے بغیر اپنی پوری فوج کے ساتھ کویت سے نکل کر ابلہ کی طرف پیش قدمی کی۔ یہ وہی مقام ہے جو آج کے زمانے میں عراق کہلاتا ہے۔ اب میدان جنگ تیار تھا۔ ایک طرف اسلام کے جان باز 17,000 سپاہی اور دوسری جانب دنیا کی سب سے بڑی سلطنت پرشین امپائر کی 40,000 فوج۔ جنگ سے قبل فارس کا جنرل آگے بڑھا اور خالد بن ولید کو للکارا، لیکن مسلمانوں کی صفوں سے ایک عام سپاہی اٹھا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آگے بڑھا اور پلک جھپکتے میں فارس کے جنرل کو واصل جہنم کر دیا۔ یہ دوسری بار تھا جب پرشین فوج کا سالار جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی مارا گیا۔ اس کے بعد دونوں لشکروں نے ایک دوسرے پر پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ زمین تلواروں کی گونج سے لرز اٹھی، گرد و غبار آسمان سے باتیں کرنے لگے اور ایک خونریز جنگ شروع ہو گئی۔ لیکن فوجی تعداد کے لحاظ سے پرشین بہت زیادہ تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی مسلمان شہید ہونے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار اپنے سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ دشمن کو لگا کہ جیسے مسلمان شکست کھا کر بھاگ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر پرشین فوج خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں کا پیچھا شروع کر دیا، لیکن اسی جوش میں ان کی فوج کے دونوں پڑ اتنے دور نکل گئے کہ اب ان کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا گیا۔ اب منظر بدل چکا تھا۔ پرشین فوج مسلمانوں کا پیچھا کرتے ہوئے ریگستان کے ان وسط میں آ چکی تھی۔ ان کے شور و غوغا سے زمین کانپ رہی تھی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سکون تھا۔ یہ وہی لمحہ تھا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلوار اٹھائی اور بلند آواز میں پکارا، اللہ اکبر! یہ نعرہ سن کر مسلمانوں کی فوج جو بظاہر پیچھے ہٹ رہی تھی، اچانک پلٹ گئی، پوری رفتار سے دشمن کی طرف دوڑ پڑی۔ پرشین فوج کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ ہوا کیا ہے۔ ان کی صفیں بکھر چکی تھی، دونوں ونگز ایک دوسرے سے میلوں دور جا چکے تھے اور اب مسلمانوں نے بالکل بیچ کے حصے پر خطرناک حملہ کر دیا۔
दोनों तरफ से सहाबा की तलवारें बजने लगी और चंद लम्हों में पर्शियन फौज का मरकज छिद गया। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मौका देखकर अपने घुड़सवार दस्ते को हुक्म दिया, उनके पर काट दो। घुड़सवार फौज दाएं और बाएं जानिब लपकी और लम्हों में पर्शियन फौज के दोनों विंग्स पर टूट पड़ी। अब दुश्मन की फौज दरमियान में फंस चुकी थी। आगे मुसलमान, पीछे मुसलमान और ऊपर से रेगिस्तानी धूल ने सब कुछ ढांप लिया। चंद घंटों की इस हौलनाक जंग के बाद पर्शियन एम्पायर की 40,000 फौज किसी तूफान में उड़ते पत्तों की तरह बिखर गई। मुसलमानों ने मैदान में फतह का परचम बुलंद किया और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा, गोया कह रहे हो ये जीत मेरी नहीं मेरे रब की है। और यूं पर्शियन एम्पायर की एक और अजीम फौज खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा गई। ये जंग कुवैत से बाहर इराक की सरजमीन पर लड़ी गई, जहां आप मुसलमान पहली बार अरब से निकलकर आलमी ताकत बनने के सफ़र पर गामजन हो चुके थे। लेकिन ये फतूहात जितनी शानदार थी, इतना ही मुश्किल मरहला अब इनके सामने था, क्योंकि इराक और मदीना के दरमियान सैकड़ों मील का फासला था। हर हुक्म, हर पैगाम मदीना से यहाँ तक पहुँचने में कई दिन लगते थे। इसीलिए खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फैसला किया कि यही इलाका उनका नया हेडक्वार्टर होगा। ये वही जगह थी जहाँ पर्शियन भी आबाद थे और अरब भी। इन सब को लगता था कि अब मुसलमान भी उनके साथ वही करेंगे जो दुनिया की बाकी सल्तनतें करती आई थी, यानी लूटमार, जुल्म और बर्बरियत। लेकिन खालिद बिन वलीद ने खलीफा वक्त अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म पर तारीख का धारा बदल दिया। उन्होंने ऐलान किया कि इस इलाके की तमाम जायदादें और अमलाक उन्हीं लोगों को वापस की जाएंगी, किसी से ज़बरदस्ती कुछ नहीं लिया जाएगा। फिर उन्होंने इसी खित्ते में नहायत तेज़ी से अदालतें कायम किए और इन अदालतों के जज बड़े बड़े सहाबा मुकर्रर किए। यूं इस सरजमीन पर पहली बार इंसाफ का दौर शुरू हुआ, जहां ताकत नहीं हक का बोल बाला था। जंग ख़त्म हो चुकी थी, अब तलवारों की नहीं इक्तिसादी मैदान की बारी थी। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने सिपाहियों के साथ इस इलाके के बाज़ारों और कारोबारी मराकिज़ की तरफ गए। वहाँ जाकर फरमाया, अपना कारोबार इसी तरह जारी रखो जैसे पहले करते थे, मगर आज के बाद इस सरजमीन पर सूद का कारोबार नहीं होगा। ये ऐलान दरअसल एक नई जंग की शुरुआत थी, एक ऐसी जंग जो इकनॉमी के ज़रिए लड़ी जा रही थी। खालिद बिन वलीद जानते थे कि सल्तनत सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि मईशत से मजबूत होती है। इसीलिए उन्होंने इलाके के गैर मुस्लिम बाशिंदों पर जिजिया टैक्स नाफिज किया। ये वही टैक्स था जो इससे पहले पर्शियन एम्पायर भी लिया करती थी, मगर अब फ़र्क ये था कि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो टैक्स इनके पुराने टैक्स से कई गुना कम रखा। ये देखकर इलाके के लोगों को एहसास हुआ कि ये मुसलमान पर्शियन हुक्मरानों से कहीं बेहतर है। रफ्ता रफ्ता वही लोग जो कल तक दुश्मन थे, आज इस्लाम की तरफ माइल होने लगे। कई लोग खुद चलकर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ौज में शामिल हो गए। अब मुसलमानों की फ़ौज ना सिर्फ तादाद में बढ़ने लगी बल्कि ज़कात और जिजिया से इनके पास माली वसाइल भी आने लगे। ये हो लम्हा था जब दुनिया ने पहली बार देखा कि खालिद बिन वलीद सिर्फ एक जंगजू नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक लीडर थे, जो जहां गए वहां अदल, अमन और खुशहाली लेकर गए। अब मुसलमान सिर्फ कुवैत ही नहीं बल्कि इराक के जुनूबी इलाके पर भी मुकम्मल काबिज हो चुके थे। ये खबर जब पर्शियन बादशाह तक पहुंची तो उसके तख्त के नीचे से ज़मीन निकल गई। ये उसकी सल्तनत के लिए दूसरा बड़ा ज़लज़ला था। गुस्से और खौफ के आलम में बादशाह ने एक बार फिर अपनी अम्पायर के शुमाल और मशरिक से दो बड़ी फ़ौजें इकट्ठे किए और हुक्म दिया कि विलाजा के मुकाम पर एक साथ हमला करो, मुसलमानों को हमेशा के लिए मिटा दो। अब सारी फ़ौजें मशरिक और शुमाल से हरकत में आ गई, लेकिन बादशाह ने गलती कर दी। उसने अपनी सल्तनत के वेस्टर्न बॉर्डर को बिल्कुल खाली छोड़ दिया, क्योंकि उस तरफ रोमन एम्पायर की हुदूद शुरू होती थी। पर्शियन बादशाह को डर था कि अगर उसने वहाँ से फ़ौज हटाई तो रोमन हमला कर देंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि रोमन अम्पायर ने कभी भी उस वक़्त हमला नहीं किया। क्योंकि तारीख पलटने वाली थी
चंद ही महीनों में रोमन एम्पायर पर हमला खुद मुसलमानों ने किया और उस हमले की क़ियादत भी दुनिया के सबसे अजीम जनरल खालिद बिन वलीद कर रहे थे। अब वो वक़्त आ चुका था जब मुसलमानों की इंटेलिजेंस पूरी पर्शियन एम्पायर के लिए खौफ बन चुकी थी। जिन इलाकों को खालिद बिन वलीद ने फतह किया था वहाँ के बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और अब वही लोग मुसलमानों के खुफिया जासूस बन चुके थे। ये वो लोग थे जो ईरान की सियासत, ज़मीन, मौसम और फौजी हिकमत अमली सब कुछ अच्छी तरह जानते थे। इसीलिए मुसलमानों की इंटेलिजेंस अब पहले से कई ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी। उन्हीं जासूसों के ज़रिए खालिद बिन वलीद को एक खौफनाक खबर मिली कि दो बहुत बड़ी फ़ौजें ईरान के शुमाल और मशरिक से तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ रही हैं। खालिद बिन वलीद समझ गए कि अगर ये दोनों फ़ौजें आपस में मिल गई तो इन्हें रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए मुसलमानों ने फ़ौरन एक स्ट्रेटजिक प्लान तैयार किया। खालिद बिन वलीद ने इलाके का मुकम्मल जायज़ा लिया। उन्होंने देखा कि ये दोनों फ़ौजें जिस रास्ते से आ रही हैं वो इलाका सब्ज़, पहाड़ी और ठंडा है, यानी इन फौजों के सिपाही रेत और सहराई गर्मी के आदी नहीं थे। यही वो मौका था जहां खालिद बिन वलीद ने अपनी तारीख बदल देने वाली चाल चली। उन्होंने अपनी पूरी फौज को हुक्म दिया कि वो डिज़र्ट का रास्ता ले, क्योंकि वहां से रास्ता सख्त ज़रूर है लेकिन रफ्तार दुगनी हो जाएगी। मुसलमानों ने जलती हुई रेत पर रात दिन सफ़र किया और तेज़ तरीन स्पीड से पहली पर्शियन फौज के सामने विलाजा के मुकाम पर जा पहुँचे। अब मैदान जंग सज चुका था। पर्शियन फौज का जनरल मुसलमानों को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि इत्तला के मुताबिक मुसलमानों की तादाद ज़्यादा बताई गई थी, मगर हकीकत में वो तादाद बहुत कम थी। ज़्यादातर सिपाही पैदल थे और घुड़सवार बहुत कम। ये देखकर पर्शियन फौज में जीत की उम्मीद जाग उठी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि खालिद बिन वलीद की असल फौज अभी मैदान में आई ही नहीं थी। अब मैदान विलाजा में दोनों फौजें आमने सामने थी। पर्शियन फौज का चैंपियन आगे बढ़ा, एक देवहिकल आदमी जिसे फारसी में कहते थे हजार मर्द, यानी एक ऐसा जंगजू जो अकेला हजार मर्दों के बराबर था। लेकिन खालिद बिन वलीद खुद आगे बढ़े और चंद लम्हों में ही उसे ज़मीन पर गिरा दिया। इसके बाद दोनों फौजें जंग के लिए तैयार हुई। पर्शियन फौज रुकी रही और वक्त ज़ाय कर रहे थे ताकि उनकी दूसरी फौज पहुंचकर इन्हें मदद दे सके। लेकिन खालिद बिन वलीद जानते थे कि अगर वो फौजें मिल गई तो मुसलमानों के लिए जीतना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने फौरी हमले का हुक्म दिया। दोनों तरफ से ज़बरदस्त जंग शुरू हुई। ज़मीन लरजने लगी, तलवारें टकराने लगी और कई घंटे गुजरने के बाद भी नतीजा वाज़ेह नहीं था। फिर पर्शियन जनरल ने अपनी थकी हुई फौज पीछे हटाकर नए सिपाही आगे कर दिए। मुसलमानों की ताकत कमज़ोर होने लगी और खालिद बिन वलीद ने बज़ाहिर मुसलमानों को पीछे हटने का हुक्म दिया। पर्शियन फौज खुशी में चीखती हुई उनका पीछा करने लगी और आहिस्ता आहिस्ता वो मुसलमानों के दरमियान एक गोल दायरे में फंसने लगे, क्योंकि खालिद बिन वलीद की लेफ्ट और राइट फौज अभी तक अपनी जगह पर मजबूत खड़ी थी। सिर्फ सेंटर पीछे हटा था। यूं दुश्मन खुद ब खुद एक जाल में दाखिल हो गया। फिर वो लम्हा आया जब खालिद बिन वलीद ने सिर्फ एक इशारा किया और अचानक मुसलमानों के पीछे से 4000 घुड़सवारों ने बिजली की रफ्तार से हमला कर दिया। पर्शियन फौज चारों तरफ से घेर ली गई। कहा जाता है कि इस जंग में कोई एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचा। ये वही डबल इन्वेल्वमेंट स्ट्रेटजी थी जो खालिद बिन वलीद ने पहले जंग ओहद में भी इस्तेमाल की थी, लेकिन इस बार वो जीत के साथ ख़त्म हुई और इस तरह पर्शियन एम्पायर की एक और बड़ी फौज मिट गई। अब मुसलमान ना सिर्फ इराक बल्कि ईरान के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच चुके थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फतवाहत का सिलसिला यही नहीं रुका। अब इनका अगला हदफ तारीख के दूसरी सुपर पावर रोमन एम्पायर थी। इसी खौफ से रोमन और पर्शियन दो अज़ली दुश्मन 700 साल बाद पहली बार इस्लाम के खिलाफ एक हो गए।